Assalamu alaikum, Sidra. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam, Umair. Thank you so much for having me. It's my pleasure, Sidra. So basically, the main reason of having this session is to get as much knowledge from industry professionals and try to understand what's the right way forward to excel in specific field. So before we start the session, I would be happy if you can introduce yourself, and then we'll start the session. Sure, sure. So I'll start off with the brief intro of my education, then I'll come towards my career and what I do exactly. So my name is Sidra Saeed. I am a brand strategist, and my qualification is I have done BBA marketing. In like 2021, I graduated, and when I recently, no, when I graduated, soon after my graduation I started my masters. So my plan was कि बहुत ज़्यादा gap नहीं लेना because वो momentum break हो जाता है, and I have seen a lot of my friends struggling to get back to education. So the plan was very clear कि okay, this is what I have to do. I have to continue my masters for any. So when I was doing my BBA, तो मेरे पास मेरा marketing major था. My inclination was very clear that I have to do something in marketing only. So जब promotion के courses वगैरह आए तो I was very clear, okay, this is what my interest area is, and I was pretty much inclined towards that, which made me think like, is it worth it to do an MBA after a BBA, or maybe I should go for a more specific education for myself. So that was the time that I started looking for, like, masters in advertising, and I came to know, like, Zabist is offering that, and Ikra University was offering that. And in that phase, I think Zabist ka test was in a few weeks when I came to know, okay, they are offering advertising masters. So I opted for the test and I got selected, alhamdulillah. Then after my selection there, I got a call from this agency called JWT Grade, which is one of Very old exactly, it comes under the WPP का portfolio Yes, basically. yes. तो मुझे exactly नहीं पता कि वो sister concern में आएगी नहीं, Yeah, but before it says GWT, now it's Gray. But yeah, it's a yeah, well-known yeah, agency. yeah, yeah. When I was there, तो I think उसका name तो उसी वक्त change हो गया था. It turned into Grey Pakistan. So the role I was offered there was of a social media executive, which was kind of like, a new space for me, and I would say it wasn't the part of the plan. Let's be very honest. So because like digital, I know is very like, is the next thing of marketing, and it is very important for people who are solely doing conventional marketing. It is very important for them to also adapt. But if I talk about my inclination in specific, digital and social media wasn't my like, favorite space to be in. I would be like, it would be like that. So when I started that job, and like, my manager that time, who's a very good friend of mine now, was telling me, okay, this is how we work. We, like, make posts. This is the kind of copies we make. This is how community operates. And she was telling me a lot about like, how digital and social media marketing actually operates. So that time it was like, I think third or fourth day of mine in that office, and I was like, okay, this is what I'm not enjoying. And I went to the HR person there, and I was like, okay, maybe I might not be able to continue it because I'm not enjoying it. Because for me it's more of like, whatever I do I should enjoy it. So I was like, okay, maybe not this place, somewhere else. So when I went there, my boss at that time was Zara Khan, who was founder of No Nonsense Cheesecake, who's no longer with us. She was going through cancer that time. So her aggressive chemo was going on, and the entire situation was very much because she was struggling to cope up with the work. And the HR person there, Andrea, was telling me, कि, okay, like, she needs somebody to assist her with the strategy stuff and all. So this is how indirectly I ended up being a strategist, and I started working with her, and I realized, okay, this is what I enjoy doing. I like doing, like, talking to consumers, knowing different markets, different categories, and it was something that was comparatively more like, attractive for me as compared to other sides of the agency. So this is how I ended up in strategy. Then after a year of working there, year or 1.5 years I was there at Grape. Then after that I got a call from Sachi, and that time I was also looking for, like, a bit more diverse brands to work on, and that was maybe the right time for me to switch. Then I switched to Sachi.
After that, like when I came to Sachi, like that at that point I was very clear, okay, strategy is what I'm going to stick to, or maybe brand management as a whole, this is what I really like doing. So that time I came to know about this diploma that IBA was offering about strategic marketing. So I was going through my LinkedIn one random day and I saw a post of somebody, I think that was Maham from Hustle. I think she uploaded her post of that diploma that she got a position there. That this is how I came to know. Okay, this is some kind of diploma that is very much aligned with the kind of work I do and my inclinations, interest inclinations. So I ended up doing that with my job, and yeah, this is how the journey of academia and career has been very Fair enough. interlinked. Fair enough. Fair enough. So thank you so much for telling me the whole journey. Okay, let's break it down and try to understand what's the right step that you took and what's the pros and cons. Because whenever anyone hears about your story and whenever anyone hears about anyone's story, तो उनको हर चीज़ हमेशा सही दिख रही होती है। इनको लगता है कि ठीक है यार, इनके साथ तो हर चीज़ अच्छी तरीके से हो रही है। जैसे अगर अगर हम अभी देखते हैं तो जो भी लोग आपके साथ हैं। So before we continue, Sidra, do one thing. Put your laptop a bit far because you are too close to it. But no, it's good enough. Fine. Yeah, it's I think perfectly. something's wrong with my And try screen. to and try Shaking to is good. and try to like आपका जो head का cut off हो रहा है वो head cut off now. Is this fine? That's yeah, that's perfectly fine. So I was saying कि yes, you were right कि स्टोरी सुनने के बाद हर किसी को ये लगता है कि everything is going very smoothly, ठीक है? People usually take only positive sides of everything, ठीक है? उनको लगता है कि everyone is going to a very good thing. LinkedIn पे भी अगर आप देख रहे होते हैं, Yeah, yeah, people usually only post those things that make someone feel like okay fine they are achieving something, ठीक है? yeah. Let's break it down, come back to the education sector, ठीक है? So you have done your graduation in advertisement, right? And Yes. you have done your masters in advertisement as well, right? If I'm not wrong. I have done my Your bachelor's in well, is marketing. in Yes. BBA marketing and then you have done your masters in advertisement, ठीक है? Yeah. So ये तो basically clear था कि आपको अपने bachelor से marketing में ही कुछ करना था, ठीक है? So Yeah. try, I would like to know कि uh, what was the right step? Like आपने भी बताया कि when you were in your masters and you got a job from Grey, ठीक है, for digital marketing, ठीक है? मुझे थोड़ा सा इसको इस तरीके से बताएं कि ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर नहीं रहे थे, एकदम से कॉल आ गई। और अगर ऐसा है भी तो इट्स वन इन अ मिलियन, ठीक है? बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको लोग अप्रोच करें, ठीक है? बट आपको क्या लगता है कि बीइंग वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3.5 years नाउ, आपको क्या लगता है कि एक बैचलर स्टूडेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए व्हेन दे आर इन द लास्ट सेमेस्टर्स? Okay. So I think one thing that has helped me a lot was that कि जब आपका एकेडमिक फेज भी चल रहा होता है ना, आप जब अपने मेजर्स भी किसी ना किसी थॉट प्रोसेस से, किसी ना किसी इंटरेस्ट इंक्लिनेशन की वजह से ही ले रहे होते हैं, कि हम्म। वेदर इट्स फाइनेंस, इट्स मार्केटिंग, इट्स एचआर, वट एवर इट इज। तो हम्म। उसमें भी ना, सी, हर चीज़ आपका जो है ना कंफर्ट जोन नहीं होती, या हर चीज़ आपकी फेवरेट नहीं हो जाती एकदम से। मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा एम्बिट था जब हम होलिस्टिकली उसको पढ़ रहे थे। तो वन एंगल फॉर मी वॉज कि मुझे प्रमोशन अच्छी लगती थी। जो हम्म। प्रमोशन के कोर्सेज होते थे, वेदर इट वाज एडवर्टाइजिंग या प्रमोशनल मार्केटिंग या इस तरह के जो भी कोर्सेज होलिस्टिक एरियाज होते थे, वो मुझे एक्साइट करते थे थोड़ा सा फ्रॉम डे वन। So from there onwards, I was a bit like, okay, if I have to go for a master's, then it shouldn't be something very broad like an MBA, maybe. So ठीक है। that was my approach towards it, that I was very clear about my interest and I really wanted my other education to also back my interest, which is why I started looking for advertising related courses. So MS may we have, like, options of advertising masters and all that I was just telling you, okay, ICRA and Zabist and other universities were offering. So I did my research after, in my last semesters, my approach was only this: कि okay, if I have to do my masters, इसके फौरन बाद, तो I started doing my research. I got to know कि okay, word of mouth किसका अच्छा है, किन universities के एज मिलते हैं हायरिंग प्रोसेसेस में भी. सो आई वाज आल्सो हम्म। कंसिडरिंग दैट पार्ट आल्सो, बिकॉज कि पाकिस्तान में
It's honestly something that I don't agree with, but it's a reality of this market that university names have a certain edge in the hiring process. सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि थोड़ा सा मैंने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम ये चीज़ को भी प्रायोरिटाइज किया. सो या दिस इज़ हाउ आई केम टू नो ओके दैट आई डोंट वांट टू गो फॉर समथिंग दैट ब्रॉड, because if I have to go for a certain industry, then my education should be like my entire plan should fall into place with that approach only. So Fair this enough. तो this is मतलब the it's a proper balanced decision. It's not like कि आपने एक दिन उठे और आपने सोचा कि ठीक है यार मैंने yeah, बैरिया से बैचलर्स कर yeah, लिया और बैरिया से मुझे मास्टर्स नहीं करना तो मैं जेबिस से जो है वो मास्टर्स कर लेती हूँ. इट्स अ प्रॉपर प्लान आउट थिंग. और yeah, मुझे लगता है कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट जिसको आगे मास्टर्स फॉरेन से करना है, दे शुड अंडरस्टैंड इट बिफोर इन लाइक देयर थर्ड ईयर, ताकि उनको पता हो कि yeah, व्हाट वुड बी द राइट अप्रोच yeah, टुवर्ड्स इट. yeah, अब मूविंग exactly, फॉरवर्ड लेट गो टुवर्ड्स द जॉब मार्केट. ठीक है, अभी आपने बताया कि योर फोर्थ डे एट द जॉब एंड यू डिसाइडेड कि डिजिटल इज नॉट समथिंग दैट यू वांटेड टू डू. yeah, A lot of people don't have the audacity to do that. They usually go in a field and they try to they try to मेक देम सेल्फ द राइट पर्सन फॉर दैट जॉब. ठीक है, वो कभी भी उनके पास, या मुझे समझ नहीं आता, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, या उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं अगली जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब पहली जॉब होती है, फर्स्ट जॉब इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट. क्योंकि yes, यस उसके बाद आप बहुत सारी जॉब चेंज करेंगी, बट दैट टाइम आप वर्नेबल होते हो, आपका आप चाहते हो कि मुझे किसी भी तरीके से जॉब मिले. ठीक है, फिर वो वाइस वर्सा, फिर वो आपको रीच आउट किया जाए या आप किसी को रीच आउट करें, बट आप बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हो. ठीक है, आप कभी कभार आपको सैलरी का नहीं पता होता, हो सकता है आप कम बता दो. ठीक है, कभी exactly, कभार आप ओवर ओवर अंडर एस्टिमेट कर देते हो, या ओवर ओवर कोई भी चीज कमिट कर देते हो कि ठीक है यार मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल एक रॉ होते हो. यूनिवर्सिटी में आपको इतनी सारी चीज नहीं सिखाई जाती. ठीक है, ऐसा ही है, you started your ग्रे एंड ग्रे वाला पोजीशन. ठीक है, और 4 दिन बाद आपको रियलाइज हो गया कि भाई ठीक है ये नहीं करना. एंड एट दैट टाइम दैट वाज 2022, राइट? एंड yeah, yeah, 2022 इज लाइक द बूम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि कोरोना के बाद हर किसी को लग रहा था कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो आई थिंक शायद आपने पढ़ाई कुछ नहीं है, और एवरीवन वांट्स टू डू इट. ऐसा ही है, ऐसा व्हाई ही है. व्हाट डू यू थिंक why you choose not to do it. ठीक है, and why you think यार is it the right thing कि चौथे दिन जाके हो सकता है it goes backfire, वो आपको बोलते हैं ठीक है आपको नहीं करना, और आप चले जाएं. ठीक है, Yeah, क्योंकि at that time फर्स्ट जॉब, आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए होते हो, आप ज्यादातर रिस्क नहीं ले रहे होते हो. ठीक है, आपको क्यों ऐसा लगा कि यार ये बोलना सही डिसीजन है? ठीक है, और आपको क्या लगता है कि why it's important to do what you really like? क्योंकि a lot of time girls, a lot of time boys who are recently graduated, ठीक है ना, I'm not talking about the Gen Z thing, हम उसकी बात अलग करेंगे, जो प्योर Gen Z, हाँ भी ठीक है हम कुछ भी स्टार्ट कर लेंगे, we're talking about general people. ठीक है, आपकी जॉब लगती है तो लोग लोग इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते, वो इतना सोच ही नहीं पाते कि उनको करना क्या है. ठीक है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि इट्स अ वेरी गुड थिंग जब आपको पहले ही रियलाइज हो जाता है कि ठीक है यार मैंने ये देखा एंड आई थिंक दिस इज नॉट फॉर मी, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. डू यू yes. थिंक इट वाज नॉट द राइट डिसीजन? डू यू थिंक इट्स अ राइट डिसीजन अगर वो बैकफायर होता, वो कहते ठीक है भाई हमें जरूरत नहीं है और आप चले जाएं? बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट स्ट्रेटेजी फॉर यू? अगर कोई बंदा अभी कहे कि उसकी पहली जॉब लग गई है, ठीक है, और वो आपकी जगह पर हो, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? Okay. So I'll talk about myself first and then I'll talk about the suggestion. So honestly, when I started working, तो आप जब आपकी पहली जॉब होती है, आप नए होते हैं, आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है कि क्या बैकफायर करेगा क्या नहीं करेगा. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो आई वुड से कि थोड़ी इमेच्योर अप्रोच कह सकते हैं इसको. उस वक्त स्टार्टिंग अभी करियर की थी, इतनी समझ नहीं आती थी कि ओके ये भी हो सकता है ये भी नहीं हो सकता, बट इतना सोचा नहीं. बट आई वॉज वेरी क्लियर इस बात के लिए कि आई वुड नॉट वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर अ करियर जो मुझे एक्साइट नहीं करता. बस मुझे एक मेरा पर्सनल क्या कह सकते हैं, मेरी पर्सनल एक प्रेफरेंस थी हमेशा से कि मोनोटनी काइंड ऑफ like you know irritates me a little. I just don't want to end up doing same thing every day, and that too which I don't like doing. So फिर एक एड ऑन प्रेशर था ना मेरे पास कि मैं फिर इस तरह की कोई चीज़ ऑप्ट कर लूँ जो मुझे करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, या शायद मैं
उस थॉट को लेके ही नहीं आई थी कि ओके दिस इज गोइंग टू बी माई लॉन्ग टर्म प्लान. सो या आई वुड से कि इफ you are in a situation where you don't have a plan B, that would not be the right approach. But yes, as a newbie, when you are in your exploration phase, when you don't know what exactly you want to do, I think that was a very right thing to do that day. And I can tell that that decision of mine was the best thing I did, I would say. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। मेरा मेन मकसद यही था पूछने का, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स रीच आउट टू मी एंड दे वर लाइक कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमें क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं चूज़ करनी चाहिए। मेरा भी सजेशन यही होता है, और आई थिंक अगर आप ये पहले ट्राई नहीं करते तो आपको फिर कुछ टाइम बाद जाके रियलाइज होता है कि यार इट्स अ रॉन्ग Exactly. अप्रोच, ठीक है। Exactly. क्योंकि जब आप अपने स्टार्टिंग करियर में होते हैं, दैट्स फॉर एवरीवन हु आर ग्रेजुएटिंग। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किस फील्ड में ग्रेजुएट हो रहे हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ करें। ज़रूरी नहीं है योर फर्स्ट जॉब विल ऑलवेज स्टे लाइक दिस, क्योंकि कुछ सालों बाद आपको शायद उस फर्स्ट जॉब की ना डेट याद होती है ना कंपनी याद होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है और क्या नहीं है। इट्स जस्ट Hmm. दैट अपने एक्सप्लोरेशन फेज में अपने पास अपने आप को ये फ्रीडम दें कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। आई एम बिल्कुल. प्रीटी मच श्योर कि अगर आप शायद अपने चौथे दिन निकल के ये नहीं कहते कि ठीक है यार मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, तो आज आज शायद हम सिदरा सईद किसी और प्रोफेशन में जो होती है उनसे बात कर रहे होते। बट Yeah. दैट इज व्हाट यू रियली वांटेड टू लर्न इन द स्टार्टिंग फेज, ठीक है। Yes. नाउ Yes. लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटजी मैनेजर, स्ट्रेटजी की ओवरऑल जॉब फील्ड के बारे में, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकाउंट मैनेजर, स्ट्रेटजी मैनेजर, क्रिएटिव मैनेजर, ये वो चीज़ हैं जो अब शायद यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती होंगी, बट यूनिवर्सिटी आपको इतना कोई क्लियर पिक्चर देती है नहीं इस चीज़ों का। ऐसा ही है. यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली थ्योरेटिकली तो सारी चीज़ें पढ़ा देती हैं, बट वो जो पेयर प्रेशर होता है जब आप जॉब के अंदर खड़े होते हैं, आपको पता नहीं होता। तो थोड़ा सा मुझे ये बताओ, being an a strategy manager, what is the main JD, what is the main core role of a strategy manager, why it's important for an agency so people will understand, okay fine, strategy manager ये काम करता है। Okay. So, in very simple words, I would say we are technically the brand custodians on the agency end, हम्म। where we are kind of directing the entire creative effort in the very right direction. In a very layman language, this is how I explain. Then I'll go into the technicalities of it, because see, if the process is we get a brief like this is what the problem the brand is facing, then we are the first one to read that brief to understand what exactly the problem is. Okay, in this problem, this is the consumer that I'm talking to. हम्म। ये अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए डील करने जा रही हूँ, तो आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको इस जगह पे या इस ब्रांड को पर्टिकुलरली यूज़ करने से रोकती क्या चीज़ें हैं, सही है? हम्म। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंटायर कंज्यूमर साइकोलॉजी बिफोर क्राफ्टिंग अ मैसेजिंग to persuade them towards my brand or whatever the problem my brand is approaching. So that entire process of understanding my consumer, understanding the category, और उस सब में क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट होगी इन टर्म्स ऑफ आर मैसेजिंग एंड आर एंटायर मार्केटिंग एक्टिविटी, उसका जो भी पूरा काम होता है, पूरा फाउंडेशनल वर्क होता है, दैट इज़ व्हाट योर स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट डज. हम्म। तो इससे होता ये कि सी इफ आई बिलीव देर आर अ लॉट ऑफ एजेंसीज इन पाकिस्तान दैट डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट, एंड उन्हीं के क्रिएटिव्स ही अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक रैंडम इंसाइट उठाते हैं और उस पर मैसेजिंग क्राफ्ट करते हैं, एंड देन ब्रांड्स कंप्लेन कि ओके दिस एड इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड और हमने इतने पैसे भी लगाए और चीज़ सही नहीं हुई. So the problem is that the entire role of having to kind of like justify what you are investing is that कि आपकी डायरेक्शन सही हो. तो वो हम्म। जो डायरेक्शन की अलाइनमेंट है और हर चीज़ को ब्रांड इथोस के हिसाब से बिठाना, हर क्रिएटिव, अगर कोई आपकी केवी भी लग रही है, अगर आपके क्रिएटिव कोई ऐड भी आ रहा है, तो हम्म। इंटायर प्रोसेसेस में स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट्स आर सो इन्वॉल्व दैट दे डू नॉट लेट यू डू एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट ब्रांड इथोस, ब्रांड पर्सोना. सो सारी जो डायरेक्टिंग पावर है ना एक एजेंसी की,
ताकि चीज़ें अलाइंड रहें, फाउंडेशन से जुड़ी रहें और ब्रांड कोई अपनी पर्सोना से हट के कोई काम ना कर दे या अपने कंज्यूमर को ऑफेंड करने वाली कोई चीज़ ना करे क्रिएटिव प्रोसेस में। वो सारा आपका स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट का काम है। सो इन द सिंपलेस्ट वे तो मैं इस बेसिक तरीके से अपना सो क्वेश्चन बता सो सकती सो बेसिकली अगर मैं एक बहुत ही लेमैन टर्म में बात करूं, तो हूँ। strategy is to understand the consumer behavior यस, before you execute any campaign, before you execute anything. ठीक है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि a lot of time लोग जो इस फील्ड से रिलेट नहीं करते हैं, they were like यार ये ऐड कैसा है, इस ऐड में क्या बताना चाह रहे हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ होल टीम बिहाइंड इट जिन्होंने जिन्होंने उसकी रिसर्च करी होती है. नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन. यस, sometimes एग्जैक्टली, sometimes it's regional, sometimes it's provisional, sometimes वो किसी बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए कैंपेन बनी होती है और उसके लिए भी रिसर्च होती है. ऐसा ही है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज कि अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी नेम्स स्पीक before you get to the job. Do you think it's very important to graduate from a very big name university? Because what I personally believe, when you are in a field such as like an account manager, strategy manager, या अगर आप एजेंसी में किसी भी क्रिएटिव फील्ड के अंदर या क्रिएटिव रोल के अंदर है, तो मैटर ये करता है कि आपकी एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी है. ठीक है, ऐसा ही है। एट द एंड ऑफ द डे नो वन विल आस्क यू व्हाट्स योर सीजीपीए, नो वन विल आस्क यू what's university that you graduated. बट व्हाट डू यू थिंक यूनिवर्सिटी, क्या रोल होता है यूनिवर्सिटी का एक ओवरऑल उस प्रोफाइल के अंदर, या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करें तो चलता है, क्योंकि अभी आपने कहा कि यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है. आई एम प्रीटी मच श्योर डेफिनेटली। दैट वाज वन ऑफ द रीजन यू आर नॉट चूजिंग Bharia for your masters rather than Zabis. So do you या think it is something very important, और आप पर्सनली भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं rather than यूनिवर्सिटी एंड मेक योर कनेक्शन बिल्डिंग या इस तरीके से? अच्छा, सो इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस एज अ होल, तो बहरिया आई वुड से वाज a very good foundation for me as a marketer. I'll be very honest. I was lucky enough to get very good teachers there. एंड आई वुड से कि जहाँ से मेरा पूरा इंटरेस्ट ही मार्केटिंग की तरफ सही से बिल्ड हुआ, एंड आई केम टू नो के दिस कैन बी समथिंग दैट वुड टर्न आउट टू बी माई फोर्टे समडे. तो आई वुड से कि मेरी फाउंडेशन एकेडमिक्स में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि उस यूनिवर्सिटी के नाम से कभी इफेक्ट हुई या मेरी कॉम्पिटेंस में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई कि मेरा इंस्टीट्यूट वॉजेंट IBA बट बहरिया. हम्म. तो आई पर्सनली डू नॉट अग्री टू दिस आइडिया, बट येस दिस इज़ द रियलिटी. जैसे आपने अभी बात करी कि क्रिएटिव साइड पे, जैसे आप अकाउंट मैनेजर हैं, आप प्लानर हैं, आप क्रिएटिव हैं, इस साइड पे फिर भी इन चीज़ों का इतना आपको ना ड्रॉबैक होता नहीं है इंस्टीट्यूशनल उसका, इफ़ यू आर इफ़ यू आर गुड एट वॉट यू डू. बट दैट टाइम आई वॉजेंट वेरी श्योर कि ओके एजेंसी इज़ गोना बी द लैंडिंग पैड फॉर लॉन्गर. तो उस वक्त मुझे इस तरह की बातें मैं सुनती थी, लाइक यू नो इन माई गैदरिंग्स, हम्म. लाइक यू नो इंस्टीट्यूट्स के नाम मैटर करते हैं. अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर पीपल फ्रॉम HR एंड दे वर लाइक यू नो हमें तो कुछ ब्रांड्स नाम लिख के भेजते हैं सर्टेन इंस्टीट्यूट्स के, वी दैट वी ओनली वांट रिसोर्सेज फ्रॉम दीज सर्टेन इंस्टीट्यूट्स ना. तो कुछ उन बातों ने मेरे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया. बट येस, इफ़ आई वुड हैव अ चॉइस के बहरिया अगर एडवर्टाइजिंग ऑफर करता तो शायद मैं इतना रेजिस्ट नहीं करती, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे पढ़ने के बाद बहुत डिफरेंट था, एंड आई वुड से बहुत अच्छा था. तो मुझे लाइक यू नो स्टडीज़ के सेंस में कोई इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं. बट येस, उसके बाद फिर जब मैंने जैबिस्ट में एडवर्टाइजिंग का मास्टर्स किया, वन थिंग दैट आई वुड रियली वांट टू टॉक अबाउट हियर इज़ दैट कि जैबिस्ट में मोस्टली फैकल्टी प्रैक्टिशनर्स हैं जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं उन एजेंसीज़ में. वो वन ऑफ माई टीचर वॉज डायरेक्टर स्ट्रैटेजी दैट टाइम, वन ऑफ माई टीचर वॉज फ्रॉम अ मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी एंड ऑल दोज थिंग्स. तो उस वक्त मैंने काम स्टार्ट किया था और वो चीज़ें मैं साथ साथ प्रैक्टिशनर से पढ़ रही थी. So the combination of both of them was very helpful for me as a planner. But yes, if I would say यही बात for a creative person, तो शायद मैं कहूँगी कि उसके लिए शायद इतनी ज़्यादा वो चीज़ें उस वक्त इतनी हेल्पफुल नहीं होंगी, बिकॉज सी क्रिएटिव हैज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी अटैच टू इट.
तो मेरे लिए एज अ प्लानर जहाँ पे मुझे बड़ी एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जहाँ मुझे हर डिसीजन एक मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट के रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए करनी पड़ती है, जहाँ पे आई हैव टू गो थ्रू द बूमो स्कोर्स, दैट आई हैव टू गो थ्रू द इक्विटी रिपोर्ट फॉर दिस क्वार्टर, और मुझे वो पूरी बी एच टीज़ को अंडरस्टैंड करके पूरा समझना पड़ता है। तो दैट पार्ट हैज़ हेल्प मी अलॉट, कि जहाँ पे मेरे टीचर्स वही चीज़ें मुझे पढ़ाते थे जो मुझे ऑन फील्ड रिपोर्ट्स मिलती थी। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट लाइक हेल्प फॉर मी, कि मेरा एकेडमिक्स और मेरी फील्ड बिल्कुल हैंड इन हैंड चल रही थी व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर। तो मुझे ये थोड़ा सा एज मिला, एंड एज अ प्लानर आई वुड से कि since you are doing a lot of brand management on this side of agency, so it is very important for you to have the right academics. तो जो, बट इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं है वो ये रोल पे क्वालिफाई नहीं कर सकते, बट येस जिनके पास राइट एकेडमिक्स होते हैं उनको एक एज मिलता है, जो शायद मुझे मिला थ्रू आउट। Fair सो enough. यस। The next thing is, um, I'm pretty much sure कि बहुत सारे लोग पूछते होंगे या बात होती होगी इस बारे में. That is, agency life is not a 9 to 5 job. ठीक है. यस, यस फॉर Being in श्योर। Pakistan, being in proudly living in Karachi, it's a very from girls to girls, because you need to understand that it's not a 9 to 5 job. Sometimes you have to sit late, sometimes you have to come very early. Okay? And as far as the overall safety issues, it's very concerned when we talk about the picture of a parental side. जब आपके माँ बाप ये सोच रहे होते हैं कि यार ठीक है, fine, you are doing good, but you need to also try to make them understand कि it's not a 9 to 5 job. हो सकता है कभी कभार आपको अपने फैमिली इवेंट छोड़ने होते हैं, कभी कभार आपको बहुत सारी और चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं. या What do you think? How are you managing thing? What do you think? What should be the key pointers for females who really wanted to start in the specific field? How they can try to want, because ठीक है, अभी तो आप ऑलमोस्ट लाइक 2-3 साल से काम कर रही हैं, तो अब तो शायद आपके पेरेंट्स ये समझ गए होंगे कि ठीक है यार, यही तरीका है काम जी। करने का, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं. बट a lot of time people and parents specifically wants their children, एंड स्पेसिफिकली अगर वो कराची में और वो लड़की हैं, तो उनको कोशिश की जाती है कि यार 9 to 5 वाली जॉब करो, बैंकिंग वाली, ताकि आप शाम के टाइम में वापस आ जाओ. आपको क्या लगता है, क्या की पॉइंट्स आप बताना चाहोगे कि यार अगर आपको इस फील्ड में स्टार्ट करना है, क्योंकि योर माइंड शुड बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट what's like a dream job है मेरी तो मुझे करनी है, बट यू नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन दैट थिंग. यस। आपने किस तरीके से समझाया? डू यू थिंक योर पेरेंट्स आर वेरी मच अंडरस्टैंडेबल इन दैट थिंग, या आपको भी थोड़ा मसला हुआ, या कोई ऐसी टिप बताना चाहो कि यार अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो वो अपने आप को प्री प्लान रखे? बिकॉज इट्स नॉट अ फील्ड जहाँ पे आपको लगता है ओके ठीक है यार, कुछ महीने ही तो 9 to 5 करना है, नहीं करना फिर दोबारा 9 to 5 हो जाएगा. बट इट्स नॉट लाइक, इट्स लाइक दैट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 9 or 10 months ईयर. ठीक है, कभी शायद एक आधी महीना ऐसा होता है जिसमें आप नहीं जा रहे होते. ठीक है, या सो व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? Okay, so yes, I would agree to everything you just said, that it is a reality of this side कि agencies 9 to 5 नहीं होती. You have to keep this thing in mind that if you are entering agencies, then you need to have a clear understanding. See, it's very basic to understand this thing कि अगर आप एक brand में काम करते हैं, तो you have one brand to look after, ठीक है, the entire year or the entire quarter maybe, ठीक है, but here you are more of a service provider to maybe 32 brands at the same time, so you need to also understand कि वो flow भी फिर 32 brands वाला ही होगा. So let's be very realistic कि अगर हम ये सोच के आ रहे हैं कि बहुत easy होगा, तो ऐसा नहीं होता. बट येस, जब आप इस सर्कल में आ जाते हैं, जब आप इस इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, तो फिर आपकी पेस, आपकी पूरी आपकी पूरी वर्क अप्रोच उसको अडेप्ट कर लेती है. इन लाइक आई थिंक जो आप दूसरी साइड पे रहते हुए शायद 6 महीने में आप ट्रेन होते होंगे ना, वो यहाँ आप 2-2.5 महीने में ट्रेन हो जाते हैं अपने, बिकॉज आपका फ्लो इतना हैवी होता है, एंड यू आर एक्सपोज टू 10 डिफरेंट काइंड ऑफ वेरी वेरी एक्सट्रीमली डिफरेंट कैटेगरीज एट द सेम टाइम. कि आप मंडे को आप एक ऑटो का काम कर रहे होते हैं, ऑटो को स्ट्रैटेजाइज कर रहे होते हैं, तो फ्राइडे शाम को आप किसी बिस्किट के लिए काम कर रहे होते हैं. सो आई थिंक इट इज़ an exciting job definitely, but it is very challenging at the same time. I would not disagree to this,
but Mm, yes, it is what it is. You are signing up for that, so you should have this thing in mind that it is going to be challenging but mm. rewarding at the same time if you like to have different challenge every day, definitely. Fair enough. The next thing that I wanted to discuss about is um, being as a creative professional, तो आपके portfolios वगैरह क्या तो किसी वेबसाइट पर होते हैं, इन सारी चीज़ों पर होते हैं. How a strategist of an agency manage their portfolio? Yes, एंड what is the right point, क्योंकि a lot of time बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि यार पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है, मैं किस तरीके से बताऊंगी, क्योंकि इन पाकिस्तान व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं किसी भी अकाउंट मैनेजर्स या डिज़ाइनर्स की जॉब या इनकी पोर्टफोलियो देखूंगा तो एक ब्रांड शायद मुझे 100 लोगों के पास दिखेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा उसका उसकी एक सोशल मीडिया की पोस्ट भी बनाता है तब भी वो अपने पास लिख देता है कि मैंने एक्स वाई जी absolutely. ब्रांड में काम करा है. तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई वो ही नहीं होता, मतलब आप किस तरीके से उसको शोकेस कराएंगे. अब जहां तक बात आती है स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी इज समथिंग जो कि फ्रंट फेस पे नहीं आता. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. यू कांट टेक अ पिक्चर ऑफ अ बिल बोर्ड एंड से कि ठीक है ये मैंने बनाया है. क्या बनाया Yes, आपने? ठीक है, इट्स नॉट अ डिजाइन. मतलब आप किसी को वो डिजाइन तो है नहीं ना कि चलो ठीक है डिजाइन का तो डिजाइनर्स का तो आसान है, उन्होंने डिजाइन डाल देना है. ठीक है, बट हाउ अ स्ट्रेटेजिस्ट makes their portfolio? What do you think, what's the right way to manage your portfolio? um, any tips on tricks on that? okay. So, definitely, very rightly said that we don't have a particular ad or a particular jingle or a particular tagline to point, okay, this is what I crafted or this is what I've done, because हम बहुत ही backstage players हैं process के. So definitely it's a challenge to even explain a lot of times that what exactly we are doing in an advertising agency, honestly. So yes, it is a struggle, but how I cater to it is that I always see the kind of brands I work for, that उनका ये बड़ा clear scene होता है that I have reports of how well they are performing in terms of their equities, in terms of their awareness levels, in terms of what they have achieved after a certain campaign was aired. So you always need to have that thing that what you have done has impacted the brand this much. So the impact as a whole is going to help you explain what you have done and has been like doing the job for the brand जिसको उनको cater करना था. For example, if I talk about कि okay, this particular brand of mine was having an awareness issue, कि उनका awareness low था, and I did an entire campaign जहाँ पे मैंने उनकी functionality को focus किया, उनके कंज्यूमर के इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हुए उनको अवेयर किया कि ओके ऐसा नहीं, ऐसा है, इस प्रोडक्ट से ये होगा, ये नहीं होगा. देन आफ्टर अ क्वार्टर मुझे BHT मिलता है और मुझे पता चलता है कि ओके मेरा टॉप ऑफ माइंड स्कोर 4 से 6 हुआ. सो इट मेक्स माई जॉब ईजियर बिकॉज मैंने बताया कि मैंने ये किया और उसका इम्पैक्ट क्या आया. So as a strategist and as somebody who works on such areas जहाँ पे थोड़ा बैक स्टेज काम होता है, उनके लिए हमेशा एक ईजियर अप्रोच यही होती है कि आप अपने किए हुए काम को प्रोग्रेस इम्पैक्ट में के देखा है. थ्रू जो है ना, एग्जैक्टली इम्पैक्ट के थ्रू आप उसको गेज करें कि ओके दिस वाज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज हाउ आई हैव अचीव्ड इट. सो व्हाट आई डू पर्सनली इज दैट आई काइंड ऑफ कीप अ ट्रैक record of what I have done and this is how that has impacted, and I have it with me. So whenever I want to tell somebody कि okay this is the kind of campaign I have done and this is what it has achieved, so it's easier for me to like go to my log and tell them okay this is the result. So फेयर yeah. इनफ. मूविंग फॉरवर्ड इज अभी आपने बात करी कि एक ब्रांड में जब आप होते हैं तो आप एक ब्रांड को देख रहे होते हैं, जब आप एजेंसी में होते हैं तो आप मंडे को कोई अलग काम कर रहे होते हैं और फ्राइडे को अलग काम कर रहे होते हैं. That's it. But at the same time, everyone has their ultimate goal to work in a MNC. A lot of people who I talk with, उनका अल्टीमेट यही गोल होता है कि वो एमएनसीज में काम करें, क्योंकि आपको शुरू शुरू में तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि यू वांटेड टू वर्क फॉर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. बट आफ्टर अ व्हाइल यू वांटेड टू हैव अ वेरी स्टेबल लाइफ, बिकॉज अर्ली 20s इज डिफरेंट, मिड 20s इज Yes. डिफरेंट एंड लेट 30s इज वेरी डिफरेंट. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द राइट पाथवे एज फार एज कि आपको लगता है कि नहीं यार, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यस ब्रांड स्टेबल होता है. ठीक है, ब्रांड स्टेबल ऐसे होता है कि यू आर डीलिंग ओनली विद वन थिंग. ठीक है, आप उस पर ज़्यादा फोकस तरीके से काम करते हो, perks and benefits are much better than agencies.
apparently your work life balance is much better than agency. ठीक है, yes, they I know a lot of brands जो internally अपनी creative team अब बना रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, but still वो लेवरेज होता है, ठीक है। अम, अम, आप एजेंसी को कभी भी किसी भी बड़ी एमएनसी से और किसी ब्रांड से नहीं मिला सकते, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि ठीक है, आज से 10-15 साल पहले तो शायद ब्रांड्स इतना फोकस नहीं करते थे, ब्रांड्स एजेंसी को देते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता वी आर सीइंग दैट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर मेकिंग देयर इंटरनल टीम्स एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ देयर एजेंसीज, ठीक है। Yeah. ऑल दो के ठीक है, आप ये एजेंसी बिल्कुल हमेशा खत्म नहीं हो जाएगी सिरे से, बिकॉज यस ब्रांड बहुत बड़े बड़े हैं और हर ब्रांड को अलग अलग तरीके से चीजें चाहिए, ठीक है। बट डू यू थिंक इट्स द राइट अप्रोच टू स्टार्ट फ्रॉम एन स्टार्टअप, goes to an agency and then move towards an MNC at the end of your career pathway? Yes, I acha okay. So I have a And do different you approach. and do you like उसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, do you think that you gonna be working for a brand in a couple of years, or you want to like just work for agencies? Maybe yes, maybe no, but agreeing to what you just said that कि आपके कुछ phases of life ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ी stability चाहिए होती है, थोड़ी सी needs different होती हैं. Yes, I would definitely agree कि आपकी जो late 20s हैं वहाँ पे आप एक different zone में होते हैं. अभी like you know I am not responsible for a lot of things. I am on my own. तो अभी शायद ये lifestyle, ये approach और ये this kind of work life balance is okay for me, so I am doing it definitely. But down the lane, so I don't have a rigid line in my head that I have to stick to this only or that side only. I am kind of exploring things इन अ वे जहाँ पे जो जिस वक़्त मुझे चीज़ सूट करती है मैं उस हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग करती हूँ. सो नाउ अभी तक मेरा एक्सपीरियंस विद एजेंसीज़ हैज़ बीन वेरी गुड. तो लाइक यू नो व्हेन I was switching to this other agency, I was also giving it a thought, like you just said, okay, like you know, stability and the work life balance and this pressure job every day. So yes, it's tough, but I am enjoying it for now. So yeah. Good answer for now. Yes, but yeah, the main discussion is yes. You got the idea. Okay, Yeah. thought process change, and you need to understand what is right for you. If you're thinking, okay, right now it's a right thing to do it, you can do it. Moving forward, the last thing that I wanted to discuss is a lot of time people think after graduation, दैट फ्रेज जो हमें बताया जाता है ना, बेटा 9 क्लास में पढ़ लो 10 निकल जाएगी, 10 पढ़ लो फर्स्ट ईयर निकल जाएगी, यूनिवर्सिटी पढ़ लो तो आपके पास जॉब लग Hmm. जाएगी, एंड देन यू रीच टू एजेंसी टाइम जहाँ पे आप compete कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसी चीज़ों से कि आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, ठीक है। इट्स नॉट अ मैथ जिसमें 2+2 4 हो रहा है 10 साल से और वो हमेशा 10 साल से 2+2 4 रहेगा, ठीक है। ऐसा ही. हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी हो सकता है दुनिया में चले, लेकिन पाकिस्तान में उस चीज़ को चलना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। यहाँ का बाइंग बिहेवियर बहुत अलग है, यहाँ का कंज्यूमर बहुत अलग है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि देयर इज सम रीजन व्हाई एरियल इज सेइंग हु हा हा करके अपना एरियल बेच रहा है और इंडिया में वैसे नहीं बिकता, क्योंकि उन्होंने भी अपना कोई थॉट प्रोसेस तो लगाया होगा ना। इट्स नॉट लाइक कि Definitely. दिस इज व्हाई पाकिस्तान के अंदर जिलेट में आज तक लड़की आ रही है और वो जिलेट बेच रही है, और दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, ठीक है। I'm amazed to know कि पाकिस्तान में आप नाच के कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। You can dance and you can sell milk, you can sell biscuits and you can sell anything, ठीक है। और जब आप इतनी मुश्किल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ता है। आपको ये पता ऐसा होना ही है. चाहिए क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि ठीक है यार, मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूँ तो मैं इंस्टाग्राम नहीं देखूंगी या मैं टिकटॉक नहीं देखूंगी, because Hmm. now we are seeing, and not only in Pakistan, we are seeing in Bollywood, we are seeing in a lot of different industries के जहाँ पे हमें memes को रेफर किया जाता है। Now we are seeing this, a lot of advertisement, a lot of commercials are like that कि वो किसी ना किसी टैग लाइन पे या किसी ना किसी हिट पे जो कि 30 सेकंड की रील थी जो कि फेमस हो गई, उसको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। Hmm. So what do you think? How's the learning and development phase matter in the specific field? What are the right resources? How you are making yourself up to the point? क्योंकि
इफ यू आर वर्किंग इन एजेंसी, आप स्ट्रेटेजी मैनेजर अगर है तो आप फिर किसी भी एजेंसी में चले आप वही काम कर रहे होंगे। 19-20 या तो ब्रांड का फर्क होगा। Right. यहाँ पे आप थोड़े छोटे ब्रांड्स देख रहे होंगे, वहाँ पे आप बहुत बड़े ब्रांड्स देखेंगे, या वाइस वर्सा। इंटरनेशनल नहीं है तो नेशनल हो जाएंगे, नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल हो जाएंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहीं नहीं रुकती है। ठीक है। ऐसे है। What were the platforms that you are using? What do you think is the right approach when you are a strategist? What are the key elements जिन पे आपको फोकस करना चाहिए? क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट, आई डोंट थिंक सो कि स्ट्रैटेजिस्ट बनने की स्पेसिफिक कोर्सेज आपको बैचलर्स में सिखाए जाते हैं। इट्स बेसिकली समथिंग जो कि आप ऑन ग्राउंड सीख रहे होते हैं, आप अपने टीचर से सीख रहे ऐसे होते है। हैं, अपने मेंटोर से सीख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहे कि ठीक है मैंने 4 साल स्ट्रैटेजी पढ़ी, अब मुझे स्ट्रैटेजिस्ट बनना है। ठीक है। और अगर ऐसा होगा भी तो आई थिंक वो ग्रेजुएट होगा तो कोई अलग स्ट्रैटेजी सीख के होगा, और 2 साल बाद किसी अलग तरीके की स्ट्रैटेजी चल रही होगी। Any tips and tricks, any platforms that you use on the learning and development, how it's important, what are the right steps to do it? That's the last thing that I want to discuss. सही है। ओके, सो माय प्रोसेस इज के लाइक जो हमारे से सिमिलर मार्केट्स होती हैं, जैसे इंडिया मार्केट का कंज्यूमर काफ़ी हद तक हमारे जैसा है। Mm, जैसे तो हम ज़्यादातर उन मार्केट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि ओके, इस तरह के सिमिलर इश्यूज हमारी मार्केट में भी आते हैं, इस तरह की स्टिग्मास, इस तरह के स्टीरियोटाइपिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी मार्केट्स में भी होती हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करूँ, चाहे वो आर्टिकल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो ब्लॉग्स हों, चाहे वो इंडियन कैंपेन्स हों, और उनको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। सिंस आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ दिस साइड ढाई अब 3.5 साल से, तो थोड़ा बहुत ऐड देख के मुझे समझ आ जाता है कि ओके, दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। बट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, तो आई रीड अपॉन द आर्टिकल्स, और मे बी कभी किसी प्लानर का कोई इंटरव्यू दिया हुआ होता है कि ओके, दिस वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस कैंपेन। सो मुझे हेल्प होती है अपने प्रोसेस को थोड़ा सा realign करने की कि okay, this is also how we can approach strategy in different situations like this. So definitely this is what I do. I read a lot of case studies, I read a lot of academic material out there also कि okay, marketing is also evolving, तो मुझे strategy के सेंस से भी क्या एवोल्यूशन की सीखने की ज़रूरत है, क्या एंगल्स हैं जो शायद अभी तक मैंने नहीं देखे थे अपने काम के दौरान और अब मुझे देखने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम ये बात करें कि जब हम पहले कंज्यूमर रिसर्चेस पहले वाले टाइम के प्लानर्स की देखते हैं, उन इंटरव्यूज़ को देखते हैं, तो सोशल लिसनिंग एक बहुत छोटा हिस्सा होती थी उसकी। बट जब से मैंने काम स्टार्ट किया है तो हमारे यहाँ कंज्यूमर इंटरव्यूज़ जब हम करते हैं, जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चाय के ब्रांड के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं mm, जो भी मेरा कंज्यूमर है मैं उससे बात कर रही हूँ एंड ऑल दोस, वो तो कॉन्वर्सेशन मेरी रहेगी। बट आई ऑल्सो लुक फॉर अ लॉट ऑफ सोशल कॉन्वर्सेशंस अराउंड इट कि ओके, इस कंज्यूमर को सिर्फ मेरे लिए सिर्फ चाय से रिलेटेड मसले या चाय से रिलेटेड परसेप्शन जानना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए mm, ये जानना भी इक्वली ज़रूरी है कि उसकी लाइफ में मसले क्या हैं, mm, उसकी डेली रूटीन के बैरियर्स क्या हैं, उसको क्या स्ट्रगल्स हर दिन उठ के करनी पड़ती हैं। तो mm, उसके लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे जो हमारे फीमेल कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, मैं उनका बड़ा हिस्सा हूँ। तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो आई रीड ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ देयर। लोगों ने अपने बड़े इश्यूज शेयर किए हुए होते हैं, बच्चों से रिलेटेड बड़े सवाल आ रहे होते हैं क्योंकि शुड आई गिव माई बेबी दिस और दैट, एंड लाइक लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। किसी ने कोई अपनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई कंसर्न लिखा हुआ है, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं। सो आई थिंक दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग अ लोकल कंज्यूमर लिटिल बेटर इन दैट सेंस। सो मैं कम्युनिटी ग्रुप्स में थोड़ा एक्टिव रहती हूँ, और मुझे मतलब इवन इफ आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, आई एम जस्ट देयर टू अंडरस्टैंड ओके व्हाट इज हैपनिंग, to understand the mindset better. So this is what my approach is, because see, strategy is not about one day coming and giving a very creatively crafted big idea. It's not about that only. It's about also 80% of it is all about understanding your consumer well. सो मुझे लगता है कि जितना अच्छा आप अपने कंज्यूमर को क्रैक कर लेते हैं ना, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रैटेजी होती है, और उतना ही इन लाइन आपकी मैसेजिंग और आपकी पूरी मार्केटिंग एफर्ट चलती है। सो माय अप्रोच इज़ समवट लाइक दैट कि मैं सबसे ज़्यादा अपना टाइम अपने प्रोसेस में भी सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो भी इन्वेस्ट करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजाइजिंग में, वो मैं अपनी कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग पे लगाती हूँ। कि अगर मेरा मेरा डेक अगर मैं कोई भी डेक बना रही हूँ, तो मुझे होता है कि मैं अपने कंज्यूमर को अच्छी तरह बिल्कुल ब्रेक डाउन करके समझा दूँ कि ओके, दिस इज़ व्हाट
ही और शी इज़ गोइंग थ्रू एंड उसकी ये इश्यूज़ हैं, उसको ये आपसे चाहिए, वो एक ब्रांड से ये एक्सपेक्टेशन रखता है, और अगर एक सर्टेन कैटेगरी की बात भी है तो उसको ये मसले हैं, ताकि जो भी चीज़ हो वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू उसकी अंडरस्टैंडिंग के हो और उसकी एक्सपेक्टेशन के हो कि ओके। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ एड्स देखते हैं और उसके वर्डिंग्स विकेबलरी सुन के, उसकी मैसेजिंग सुन के हमें लगता है ओ यार एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई गो थ्रू एवरी डे। सो सी दिस इज़ व्हाट माई जॉब इज़ टू ब्रिंग रेलिवेंस, टू ब्रिंग रिलेटेबिलिटी एंड टू bring a realistic image of my consumer on what you see on screens and in the messaging that the brand does. So yes, this is how Very well, I very well answered. Okay, being a strategist or being in a creative field, you need to become a public person. You need to understand definitely. what people are going with, because a lot of time, I didn't ask this question, but I think now we understand that uh, this is the real reason why. Agar we discuss about Indian market, that the conversation, the ideas, the advertisement, the boldness they are producing, why we are not producing, is just because of that. Because वहाँ पे a lot of people understand that, वहाँ पे a lot of people has a basic knowledge of understanding जब आप कोई चीज बना रहे होते हैं। यहाँ Definitely. पे if we are like if you are working for a brand जो लोग जानते हैं, ठीक है, तो समझ में आता है। बट देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो कि इंटीरियर सिंध में होते हैं, इंटीरियर बलूचिस्तान में होते हैं, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होता। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही हो, उसके लिए बीटीएल एजेंसीज होती हैं और आप उन चीज़ों को हायर करते हैं और ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उन स्ट्रैटेजीज पे पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि you never know at the end of the day how what thing will work. But I think we have discussed very good things, Sidra. It's my pleasure to have you on the session. I personally believe that a lot of people will learn a lot of good things about the strategy management thing, and it's my pleasure to have you on the session. Hopefully, if anyone wants to reach out to you and need to understand about strategy much better, they can reach out to you on LinkedIn. Just for the audience, if you want to reach out to Sidra, write a proper message. If you are writing only hi or hello, please don't expect any price. अगर आप proper message रखेंगे, तो I'm pretty much sure Sidra will be there to help you as well. So thank you so much, Sidra. Thank you so much for your time. Thank you so much, Umar, for having me. It was a lovely conversation, and I really like the format that you are following. It's very candid, and it's definitely giving a very realistic picture of different industries to the younger audience. Thank you so Perfect. much. Thank you.